Hello, dear students. Today we will continue our class Light, Reflection and Refraction. In previous classes, we covered reflection part. Now we will discuss the refraction. Okay, so let's start this one refraction. So, what is the refraction? Anyone have idea about that? What is the refraction? Refraction क्या होता है and how it is different from the reflection? Okay, तो refraction क्या होता है? What is the refraction? रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए, किसी को है आइडिया? है ना, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट व्हेन द there is changes in the medium, then the speed of light is change. So its impact is known as the refraction. The path slightly change, divert. Let's see the change in the direction, change in the direction of change in the direction of propagation of a ray of light when it travel obliquely from one medium to the another ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। है ना, आपने देखा ही होगा किसी अ, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर हमने पेंसिल रखी हुई है, उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो हमें जो पेंसिल है वो बेंड हुई हुई दिखाई देती है, थोड़ा बेंड हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसको आप हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देर इज ए इंसिडेंट रे एंड इट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब रेयर, रेयर मीन्स आपने देखा ही होगा, रेयर मतलब कहीं कहीं मिले, कहीं कहीं मिले मतलब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे गैसियस फॉर्म में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वहां पर उसको बोला है रेयर मीडियम। व्हेन द लाइट कम फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या हो गए, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसको बोला है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम्स टू denser medium. Air is a rare medium, glass is a denser medium. So when rays coming from rarer medium to the denser medium obliquely, then we can see that it must go along this path, but it slightly divert, it slightly divert, ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है इस साइड में आपकी, ये डाइवर्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्ट हो गई है और टुवर्ड द नॉर्मल डाइवर्ट हो गई है। तो व्हेन द रेयर टू द डेंसर मीडियम, इट व्हेन rays transfer or flow or propagate, then it is known as the refraction. That bending of that one, the deviation from the original path is known as the refraction. Now, again here we can see that this one is the glass and it will be come out. So again the medium will be change. यहाँ पर भी medium change होगा. So now it will go from glass to the air, glass to the air. So यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप देखोगे जब ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं तो द पास्ट मस्ट बी लाइक दैट, ये आपका पाथ होना चाहिए था, ये पाथ होना चाहिए था, ये वाला पाथ होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है और इस टाइप से निकल गई है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन रेस लाइट रेस passes through denser medium to rare medium, then it divert away from the normal, away from the normal. And this ray which is coming out, it is known as the emergent ray. It is known as the emergent ray. We can see that the initial ray, the path of initial ray, the path of initial ray and the final emergent ray both are parallel, both are parallel. So we can say that PQ is parallel to RS. We can consider this is the S, we can consider this is the S. So we can say that PQ is parallel to RS. Okay, we can use this one. यहाँ पर आप देख सकते हो, when the denser medium to rare medium, then it is away from the normal, away from the normal, right?
यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल, अपने को मालूम ही है इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, दैट इज द इंसिडेंट एंगल। एंड यहाँ पर जो बनेगा वो रिफ्लेक्शन वाला जो है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला तो होगा नहीं, यहाँ जो रेर है ना, रिफ्रैक्शन वाला एंगल बनेगा, so दैट इज द आर। This one is the refraction. This is the refraction angle. This is the refraction angle. Okay. And this one is the emergent angle. It is the emergent angle. Emergent angle. Please remember that here in refraction, I is not equal to रिफ्रैक्शन एंगल। ये रिफ्रैक्शन वाला है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्लेक्शन में होता है। ये रिफ्रैक्शन वाला है, रिफ्रैक्शन वाला है, तो रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर आई जो होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। ओके। एंड अनदर थिंग इज दैट वी कैन सी दैट द आई, यहाँ से आप देखो तो ये आई किसके बराबर होना चाहिए, ये पूरा एंगल होना चाहिए था, पूरा एंगल होना चाहिए था वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये पूरा एंगल होना चाहिए, बट उससे कम है। सो मीन्स यहाँ पर एक और चीज इक्वल तो नहीं है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, आई इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन एंगल, आई इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन एंगल। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन, इट मे बी आस्क इन एमसीक्यू और in other case study it can be asked. So let's see why it happen, why the पाथ चेंजेस, पाथ क्यों चेंजेस हो जाता है, जो रे आती है वो बेंड क्यों हो जाती है, उसको देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर आपका एक कोई ट्रैक्टर है, वो स्मूथली चल रहा है रोड के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ इट्स टायर आर टचिंग द सेम रोड, देन देर इज नो इश्यू, बोथ आर running with the same speed, then there is no issue. If the speed of this outer, speed of the outer tire it increases, outer tire speed is increases, then what will be happen, what will be the happen, outer tire की स्पीड जैसे इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा पाथ कवर करेगा कंपेयर टू इनर, और ये इस टाइप से बेंड हो जाएगा, इस टाइप से बेंड हो जाएगा और अपना पाथ चेंज कर लेगा। ठीक है। या अगेन हियर, यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है, एक टायर है आपका रोड के ऊपर है और एक टायर आपका सोइल के ऊपर है, तो यहाँ पर भी स्पीड चेंज हो जाएगी, और ये फिर थोड़ा सा और चेंज कर लेगा, फिर थोड़ा और चेंज कर लेगा, थोड़ा सा और डाइवर्ट हो जाएगा, स्पीड जिधर कम होगा उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो यहाँ आप देख सकते हो ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू स्पीड इट डाइवर्ट ड्यू टू स्पीड। तो हमारे केस में भी क्या है, जहाँ स्पीड कम हो रही है, ठीक है, स्पीड कम हो रही है, तो वहां पर इट डाइवर्ट टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, जिस साइड से स्पीड कम हो रही है उस साइड की तरफ मूव हो जाता है, उस साइड की तरफ मूव हो जाता है, जिस साइड से स्पीड कम हो रही है उस साइड की तरफ मूव हो जाता है, उस टाइप से बेंड हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों टायर सेम मीडियम में है, देन देर इज नो इश्यू, दोनों की स्पीड सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो कंक्लूजन यही है आपका, जिस साइड से आपकी स्पीड कम होगी उस साइड में बेंड हो जाएगा, इट मीन्स रेयर टू डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, रेयर टू डेंसर, ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो रे टू डेंसर जाएंगे, ठीक है, तो इट विल बी बैंड, इट विल बी बैंड टुवर्ड द, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, और ये वाला जो एंगल है दैट इज द डिफ्रैक्शन एंगल, सो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड velocity decrease because that is the light is going from रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पार्टिकल कम है रोकने वाले, यहाँ पार्टिकल ज़्यादा है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। व्हेन द डेंसर टू द रेयर, डेंसर टू द रेयर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर या ग्लास के अंदर से ये जा रही है एयर, बाहर की तरफ आ रही एयर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आप यहाँ देख देख सकते हो थोड़ा सा दूर की तरफ चला गया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
right? So it bend away from the normal, away from the normal. यहाँ क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अलोंग द नॉर्मल। अगर ओब्लिकली नहीं आएगा लाइट, अगर ओब्लिकली नहीं आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, देन यहाँ पर कोई भी इस टाइप से डाइवर्जन नहीं होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर ये पूरा मीडियम माना जाए, ठीक है, पूरा मीडियम माना जाए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ यहाँ स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर स्पीड कम है। अगर ओब्लिकली नहीं आ रही फिर भी अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर पासेस अनडाइवर्टेड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन है। इफ द रे लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, है ना। यहाँ पर ग्लास, आपको ये रे है, रे, यहाँ पर आपने ग्लास ले लिया, ग्लास स्लैब ले लिया, ये आपका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, एक पूरी पट्टी पट्टी जो होती है जैसे बर्फ की सिल्ली होती है उसी टाइप से पूरा पूरा ग्लास कांच का टुकड़ा है, ठीक है। ग्लास स्लैब 30 डिग्री, रे ऑफ लाइट यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, बिकॉज ये रे कितने एंगल बना रही है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज काउंट फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, इसी को अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये बचा हुआ एंगल आपको दिख रहा है कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आंसर इज 60 डिग्री, आंसर इज 60 डिग्री, राइट। Next question, the ray of light strike the glass slab normally. What is the angle of incident? Normally आ रही, बिल्कुल ग्लास स्लैब के ऊपर से आ रही है, नॉर्मली यहाँ से ही आ रही है लाइट, कहाँ से आ रही है, ये इसका नॉर्मल है और यहीं से आ रही है लाइट, यहीं से लाइट आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको देखेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो होगा, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी जीरो। Third one is the ray of light strike the glass slab at 30 degree. What is the angle of emergence? What is the angle of emergence? Angle of emergence. एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस आप यहाँ पर तो आपको करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको करके देखना पड़ेगा। कैसे, चलो इसका सोचो कैसे क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर करके देखो इसको, यहाँ पर ये लिया आपने, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, यहाँ पर ये इसका नॉर्मल है और यहाँ पर ये आ रही है, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मालूम है व्हाट इज द एंगल ऑफ द इमरजेंस, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। और वापस ये क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, वापस ये इस टाइप से ये बाहर की तरफ निकलेगी, एंड दैट इज एंगल, दिस एंगल, this angle is the emergent angle, and we know that incident angle is equal to emergent angle। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है ही है, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, राइट। चलो नेक्स्ट। A ray of light strike the glass slab at the angle of the 50 degree with the normal, so to the surface of the slab, what is the angle of incident, ठीक। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल से एंगल बना रही है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है और इससे एंगल कितना बना रही है, 50 डिग्री बना रही है, कितना बना रही है, 50 डिग्री बना रही है, और आपको इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वही वाला एंगल होगा। Air of light gets deviated when the passes through the obliquely from one medium to the another medium, because क्या होता है, आपने देखा है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, उसके कारण ये डेविएट होती है। ये आप कर सकते हो। Rakesh performed the experiment of the tracing the path of the ray of light passing through the rectangular glass slab for the different angles of incidence. He observed that the all cases, हमने देख ही लिया है कि इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है,
इमर्जेंट एंगल के बराबर। और क्या होता है, ये जो इंसिडेंट एंगल है जनरली इससे बड़ा होता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो, तो ये थे आपके कुछ क्यूज। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगेन वो की हुई चीजें हैं। डायग्राम आप देख सकते हो, वैसा वैसा डायग्राम बनाया है। सो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट when it travel obliquely from one medium to the another transparent medium is called the refraction of light। ये definition हम लिख चुके हैं। and the this diagram again the same। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रेज है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रहे हैं और ये डाइवर्ट हुआ है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सब ये भी एक ही प्लेन में होंगे। जैसा आपका रिफ्लेक्शन में होता है उसी टाइप से यहाँ पर भी एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रेज ये है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और नॉर्मल ये वाला इसका नॉर्मल है ऑफ द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ये नॉर्मल है आपका, यहाँ पर इंटरफेस है, ये रहा इंटरफेस, यहाँ पर इस साइड में एयर है, इस साइड में ग्लास है, इनका इंटरफेस यहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड वन इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important, please remember this one। the ratio of the sine of angle of the incidence to the sine of the angle of the reflection is constant। इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल आपका आर है। सो उसका साइन, साइन आपके आएंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 और 10th में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। तो उसका साइन for the light of the given color and the for a given pair of the media। So if the color is fixed and a media is fixed, then the ratio of sine of I to the sine of R is fixed। This law also known as the Snell law of refraction। Snell law of refraction। Please remember that ये नहीं बोल रहा है कि I to the R ratio is constant, ऐसा नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? साइन ऑफ आई जो भी एंगल है उसका साइन, और जो भी एंगल है उसका साइन, आर का साइन और आई का साइन, इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। दैट इज नोन एज द स्नेल एंगल, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर इज ए कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट होता है इन दोनों का एंगल का, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज रिमेंबर दैट some book that refractive index denoted by n, some books the refractive index is denoted by mu। mu is like that, u जैसा होता है, u अपन हम ऐसा लिखते हैं, और इसमें इस टाइप से भी निकला हुआ होता है, इस साइड में भी बेंड होता है। तो यहाँ पर आपका ये म्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी डिनोट करते हैं। सॉरी, जैसे आइस का देखते हैं हम, ठीक है। आइस में क्या होगा? इंसिडेंट रेज आई, ठीक है, डेंस मीडियम में बेंड हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है 1.31। एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? द डिग्री ऑफ डाइवर्जन, डिग्री ऑफ बेंड, कितना डिग्री से बेंड होगा, कितना ज्यादा बेंड होगा, कितना कम बेंड होगा, ये डिसाइड करता है ये आपका एंगल का रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करता है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायमंड और एयर का लिया हमने। यहाँ पर देखो और ज्यादा पास में आ गया, और ज्यादा पास में आ गया, तो यहाँ पर और ज्यादा पास में आ गया, इट मीन्स यहाँ पर जो बेंडिंग है ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? जो बेंडिंग है, एक्चुअली इसको निकलना चाहिए था उधर, यहाँ पर बेंडिंग और ज्यादा हो गई, बेंडिंग और ज्यादा हो गई, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ज्यादा डेंस है, ये मीडियम ज्यादा डेंस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ज्यादा डेंस है तो
स्पीड बहुत कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो ज़्यादा डाइवर्जन होगा। ये वाला डायग्राम की बोल रहा था मैं। ग्लास है और एक ग्लास है और उसके अंदर पेंसिल है, और पेंसिल अपियर टू बी ब्रोकन इन ए बीकर विद द वाटर। अगर हमने इसको अंदर वाटर भर दिया, ठीक है, हमें वाटर भर दिया तो मीडियम चेंज होगा, तो हमें थोड़ी सी ये बैंड हुई हुई दिखाई देगी यहाँ से। हमें ऐसा लगेगा ब्रेक हो गई है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी यहाँ पर, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अपेरेंट पोजीशन है ना, एक्चुअल पोजीशन ये है और आपको अपेरेंट हो रहा है, आपको यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से आती दिखाई रही, यहां पर अपेरेंट पोजीशन ये वाली है, ये एक्चुअल पोजीशन। सिमिलर अपने को स्विमिंग पूल वगैरह में भी होता है, ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन, जो हाइट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो कम दिखाई देती है, मीन्स वहाँ जो डेप्थ है वो शेलो दिखाई देती, कम डेप्थ लगती है, एक्चुअल में डेप्थ ज़्यादा रहती है। Thus, the because of the reflection of the light coming from the part of the pencils that is the underwater, the pencil appear bent, है ना। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है मीडियम, यहाँ पर मीडियम अलग है, यहाँ से यहाँ आंखों में जा रहा है वो मीडियम में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, और यहाँ पर वाटर से पहले एयर में गया, ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम बात कर रहे थे, तो लेट्स कंटिन्यू दिस वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मीडियम 1 टू मीडियम 2 में जब जाते हैं, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका हमारा इस टाइप से रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I/R। एन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक में म्यू से भी डिनोट करा, ठीक। अब मीडियम 2 जहां पर जा रही है और मीडियम 1 जहां से आ रही है, जहां से आ रही है। चलो, अगर हमने इसको 2 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इसका मतलब क्या हो रहा है 2 1। तो पहले 1 की वेलोसिटी कहाँ, 1 की वेलोसिटी और डिवाइड बाय 2 की वेलोसिटी, फिर बाद में आएगी वेलोसिटी 2, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट द हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 1। 1 से 2 में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है, कहाँ से, 1 से आ रहा है। चलो, 2 1, तो पहले जो 1 लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। इसका क्या मतलब हो जाएगा 1 2 का, इसको क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे वेलोसिटी इन 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं N21 और N12 दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं आपके, रेसिप्रोकल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। प्लीज note that how we write that one, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2। पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, और वेलोसिटी में ऊपर V1 आएगी, नीचे V2 आएगी, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। सो वी कैन राइट दैट N21 इक्वल टू 1/N12, राइट। चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम। Absolute means we assume that absolute refractive index means the first medium is vacuum. Generally, vacuum not a, it is a just a ideal condition. Generally, we can consider air as a vacuum for practical application. So whenever it is said that absolute refractive index, it means the first medium is the vacuum. First medium is the vacuum. यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे वैक्यूम से एयर में आ रहा है, ठीक है, तो एयर थोड़ा सा डेंस होती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कम बेंड हुआ है। वी कैन नेग्लेक्ट जनरली दिस वन, ठीक है। इस केस में
क्या होगा, ऑलमोस्ट वही होगा 1.31 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर के साथ में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा 1.33। ग्लास के अंदर वैक्यूम टू ग्लास 1.52। जैसे जैसे डेंसिंग बढ़ता जाएगा, मीडियम का डेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा होगा, ठीक है, 2.42। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट दिस वन, diamond, and first one vacuum to the air. This is also very common, air to water or vacuum to water. Refractive index increases, the bending capacity increases। जब भी refractive index increase होता है तो bending capacity भी increase हो जाती है। The question is, the refractive index of the diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? So what is the meaning? 2.42 बता रहा है कि बैंड होगा, देखिए 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड ऑफ 2.42 सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल रिड्यूस। यहां पर स्पीड अपने को मालूम है, बिकॉज दिस इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू द डायमंड, और वी कैन कंसिडर एयर टू द डायमंड, सो रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, एंड इट्स वैल्यू इज 2.42। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो कितने से डिक्रीज होंगी, बाई फैक्टर ऑफ 2.42। तो इतने टाइम से स्पीड कम हो जाएगी, इतने टाइम से स्पीड कम हो जाएगी कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दैट जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही लाइट की स्पीड कम होती जाएगी उस मीडियम के अंदर। ये जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा आपको इस टाइप से फ्रेम करना है। कैसे करना है, NAV। तो यहाँ V वाले को पहले लिखना है, यहाँ V वाले को वेलोसिटी ऊपर लिखनी है, ठीक है। ये डिवाइड बाय हमने देख ही लिया है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो यहाँ पर ये V बता रहा है, ये है वैक्यूम मीडियम और ये है एयर, ये है एयर। तो वैक्यूम टू एयर आ रहा है, वैक्यूम टू एयर आ रहा है, आइस टू एयर, आइस टू एयर। तो यहाँ पर जो बाद में आता है उसको वेलोसिटी ऊपर डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आई है, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। सिमिलरली आपका ये आ जाएगा लिखने का तरीका। लिखने का तरीका जो है वो समझ लो आप, ठीक है। GV, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन गैस, वेलोसिटी इन गैस। और यहाँ पर G को ग्लास से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी जो A बाद में लिखा हुआ उसकी वेलोसिटी यहाँ ऊपर आएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। जहाँ पर वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल। तो इस टाइप से लिखने का तरीका है इनको, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, N21, N21। यहाँ पर 21 का मतलब क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर जो बाद में लिखा हुआ उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी और ये पहले आएगा। N21 का मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1/N12, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वापस से रिवाइज करा देते हैं। इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड देन फर्स्ट medium we consider as a air. If the first medium is the vacuum, then the refractive index of the second medium is called the absolute refractive index. For solving the numerical velocity of light in air or velocity of light in vacuum, we consider vacuum में भी light वही consider करेंगे, और
एयर में भी लाइट की जो स्पीड है वही कंसिडर करेंगे। नॉर्मली वी कंसिडर दिस एज ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर दिस वन, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, और एयर के अंदर भी हम ऑलमोस्ट यही कंसीडर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज द नो यूनिट, क्यों? क्योंकि ये रेशियो होता है, दो वेलोसिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। राइट, चलो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। Light enter into the glass plate having the absolute refractive index is 1.50. What is the speed of light in glass if the speed of light in the vacuum is given? चलो तो 1.50 फैक्टर से वो स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है वैक्यूम के अंदर, और वेलोसिटी आपको निकालनी है मीडियम के अंदर, ग्लास मीडियम के अंदर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखने का तरीका, ग्लास के अंदर निकालनी है तो जी पहले आ जाएगा और वी बाद में आ जाएगा। ये आपको लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, तो जी वी। वेलोसिटी v पहले आएगी, डिवाइड बाय g। वेलोसिटी v में दे रखी है, वैक्यूम में दे रखी है, तो वैल्यू उसकी वैल्यू रख देंगे, डिवाइड बाय 1.50, तो 1.50 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 ÷ 1.50, तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। ये आपकी स्पीड इन द ग्लास आ जाएगी, स्पीड इन द ग्लास आ जाएगी। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, 4/3 means 1.33, the speed of light is that, find the speed of light in the water। सेम टू सेम वो वही कहानी, ठीक है। आपको लिखने का तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो वी ए लिखेंगे, वाटर और एयर, वाटर एंड एयर, तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, स्पीड आपको एयर की दे रखी है, ठीक है, वाटर का निकालना है तो इस टाइप से लिखेंगे, वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन वाटर। यहाँ पर स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये हो जाएगी 2.25, 2.25 मीटर पर सेकेंड। Next question, if the refractive index of the water for the light going from air to the water is 1.33, then the what will be the refractive index of the light going from water to air? उल्टा करना है, जस्ट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में हमने को मालूम है क्या हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा, तो 1/1.33 उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.33 कितना होता है, 4/3 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 = 0.75। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन, ठीक है, टार्पेलिन एंड द वाटर इज 1.44, 1.47, 1.33 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दिस मटेरियल लाइट ट्रैवल फास्टर? किस में ज़्यादा होगी? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखो किस में सबसे कम लग रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें कम लग रही है, 1.33 में कम लग रही है। 1.33 किसका है, 1.33 वाटर का है, इट मीन्स वाटर की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टर की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी। सो ऑब्वियसली द above relation of the speed of light will be the maximum that the medium which has the lowest refractive index। So यहाँ पर अपन देखें सबसे कम इसका 1.33 का है, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वाटर में होगी। ठीक, अनदर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव द फास्टर? अभी हमने देखा, ठीक है, सबसे फास्ट किस में मूव करेगी, 1.31 में करेगी, ठीक है, आइस में फास्ट मूव करेगी। यूजिंग द अबो टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो वाटर के अंदर स्पीड। ऐसा क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से करना। द पाथ ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम द एयर टू द डिफरेंट मीडिया, ये पहला मीडियम है आपका एयर और उसको दूसरे अलग अलग मीडियम में जा रही है। गिवन एंगल इंसिडेंस शो दैट बिलो। ठीक है, स्टडी द डायग्राम एंड द आंसर द फॉलोइंग। क्या क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द मीडिया ए बी सी इज द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसको सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा बैंड हो रहा है क्या, कौन ज़्यादा बैंड हो रहा है यहाँ पर? तो अगर ये सीधा सीधा निकलता
ये यहाँ सीधा सीधा निकलता तो ये एंगल कितना होता, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री में से 30 डिग्री बेंड हो गया। अब 60 डिग्री में से 15 डिग्री का बेंड हुआ, और 60 डिग्री में से कितना हुआ, 20 डिग्री बेंड हुआ। तो सबसे कम बेंड किस में हुआ, सबसे ज़्यादा बेंड किस में हुआ, उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बेंड हुआ इसी में, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडिया व्हाट विल द स्पीड ऑफ द लाइट बी मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड कम किस में होगी, जिसमें कम, सबसे कम बैंड होगा। सबसे कम बैंड इसमें हुआ तो इसमें मीडियम बी में सबसे ज्यादा स्पीड होगी। विल विल द लाइट ऑफ ट्रैवलिंग इन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ए टू बी में अगर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ट्रैवल करेंगे बेंड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर होगा क्या, ये मीडियम डेंस है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर ये क्या है, ये ये इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है। ज्यादा डेंस से कम डेंस में जाएंगे तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर आप देख सकते हो sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 45 डिग्री। तो यहाँ पर इस टाइप से मीडियम ए है द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी, बिकॉज यहाँ पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट ट्रैवल फ्रॉम द, सो इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका क्लास थी, है ना। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप प्लीज़ इसको नोट करें और बुक से भी पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।